Hello students, I Sushma Kataria from Suraj School Bhiwadi, and today in this video we will discuss about a very simple and short part of grammar portion in 11th class, that is modals. What is the meaning of modals? Modals are the verbs which show some kind of ability, possibilities, permission and command. Okay, so these to show these kind of things we use some words that is called modals. Okay, so in these are the words which we use in the as a modal: shall, will, should, would. These are the words to express mode of action. That means what kind of action, as it can be a permission, it can be a ability, it can be your invitation, request. These kind of word are can be used in to show these kind of actions. Clear? Okay, so let's start with the using of modals. In the very starting we use will. How we will use will? To express the simple future. As you know that will is a kind of helping verb when we using a sentence in future tense, so we use will. अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन क्या है? टू अ काइंड ऑफ इन्विटेशन और रिक्वेस्ट. जब हमें किसी से इन्विटेशन करना है, जैसे विल यू हैव अ कप ऑफ टी, रिक्वेस्ट है विल यू प्लीज़ डू दिस वर्क फॉर मी. सो उस तरीके से भी हम विल का यूज़ कर सकते हैं टू एक्सप्रेस कमांड इन अ फॉर्मल और इन पर्सनल मैनर. दैट विल यू गो देयर, you will go there, you will reach there on time. So these kind of thing you can use in the formal or impersonal manner. A kind of command, that means a kind of order can be said to express something that happen again and again and likely to be regular again. You जैसे he will often go to that roof on this house and enjoy the kite flying. वो usually वहाँ जाएगा. और जैसे हम किसी फ्यूचर एक्शन को दिखा रहे हैं लेकिन हम उसकी हैबिट को भी बीच में शो कर रहे हैं, तो हम यूजुअली उसमें उस वर्ड में क्या दिखाते हैं? विल का यूज़ करेंगे. ओके, एंड टू एक्सप्रेस विलिंगनेस एंड ऑफर, डियर आई विल कम बैक. डेफिनेटली इसमें क्या दिखाएंगे कि आप अपनी एबिलिटी को उसमें शो कर रहे हैं, एक्सप्रेस विलिंगनेस को शो कर रहे हैं कि आप अपना ऑफर और विलिंगनेस इसमें दिखाएंगे. टू एक्सप्रेस स्पीकर इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस एंड understanding. Here the subject in the pronoun is first person. Okay, so we will fight to the last. हम इसमें क्या दिखाई दे रहा है? Determination. I will return your money next week. A kind of promise is there. We will pay a visit to the Vaishno Devi cave this year. Clear? We will not budge on an inch from the writer's path. So these kind of things, these are the sentences which show some kind of determination, promise, understanding. Okay, so next है to express the certain quality and capacity of a thing mentioned. जैसे he will hold the whole milk. क्लियर? मतलब एक एबिलिटी को दिखाने के लिए भी हम यहाँ पे विल का यूज़ कर सकते हैं. ही विल कमिट ऑल सॉर्ट ऑफ फनी मिस्टेक. ओके, टू एक्सप्रेस प्रेडिक्शन मतलब कि किसी तरह की हम भविष्यवाणी काइंड ऑफ करते हैं कि हाँ वो ये करेगा ही करेगा. जैसे आप कहते हो ना कि नहीं मैं उसको जानता हूँ, ही विल डू दिस. सो यहाँ पे भी हम विल का यूज़ करते हैं एज अ प्रिंसिपल वर्ब. जैसे विल्ड, द, शुड, ये दिस इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस. Okay, so this is the way we can use in the will. In a shall, same जैसे will का प्रयोग होता है, in the same way we use the shall words. बट यहाँ पे shall जो है वो जैसे will है वो I और इनके साथ यूज़ होता है. shall I close the door. I and we यूजुअली इनके साथ यूज़ होता है टू एक्सप्रेस द अश्योरेंस, प्रॉमिस, कमांड, ऑर्डर, डिटर्मिनेशन और थ्रेट. क्लियर? एंड सब्जेक्ट टू द pronoun in the second or third person. Second and third person, again second, third. Second person you, your. Third person he, she, it. If you work hard you shall pass. A kind of promise. और command दिया हुआ, you shall do it. command दिया जा रहा है. Order, you shall not touch my pen again. A kind of order. Determination, ask for reward and you shall have it. Clear? So these kind of things which usually देखिए यहाँ पे दिया हुआ है a kind of certainty, command and assurance and promise. These kind of words which shows some kind of thing. तो जहाँ यहाँ पे ये जो shall use किया गया for that only. Okay, you shall be punished if you fail. A kind of threat is given here. ठीक है, यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है? थ्रेट दिखाया हुआ है. You shall report for duty on Monday.
टू एक्सप्रेस दैट समथिंग सर्टेनिटी विल और मस्ट हैपन, तो हम वो उसमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, सर्टेनिटी, यानी कि डेफिनेटली आपको थोड़ा सा कंफर्म है कि हाँ ये चीज़ होगी. ही शैल नॉट बी अलाउड टू सफ़र. No child shall be allowed to go out for the school during study hour. These are the must condition that is. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, shall का यूज़ करेंगे. Clear? So now let's go for the would. वुड में वही है जो विल का है, उसी का पास्ट टेंस में वो कन्वर्ट हो जाएगा. क्लियर? जो जो उसमें विल में हमें प्रेजेंट उसमें दिखाया हुआ नॉर्मल तरीके से, जब भी हम उसको पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे दैट ऑल विल शोज द would. Okay, to express future in the past, he asked me if I would help him. He told me that she would not accompany me. To express the polite request or suggestion, would you be kind enough to lend me your pen. So these kind of things to express or request, सेम अगेन जैसे वहाँ पे भी था रिक्वेस्ट करने के लिए और इनविटेशन के लिए हम विल का यूज़ कर रहे हैं, सेम यहाँ पे भी क्या दिखाया दे रहा है, विल का पास्ट टेंस. टू एक्सप्रेस कस्टमरी एंड हैबिचुअल एक्शन, जैसे हमने कहा था कि किस तरह के हम विलिंगनेस को शो करते हैं, प्रेसेस को शो करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पे ही यूज्ड टू डू दिस. तो यहाँ पे आपका वो आ जाएगा, फादर वुड ऑलवेज ब्रिंग अस फ्रूट्स व्हेन ही केम बैक होम. तो यहाँ पे एक तरह से क्या दिखाया गया कि वो पास्ट की किसी एबिलिटी को या फिर किसी हैबिचुअल एक्शन को शो किया गया है कि जैसे हमें पास्ट में था, आई वुड एबल टू प्ले हॉकी व्हेन आई वाज यंग. सो दिस वे यू कैन राइट इट. टू एक्सप्रेस अ विश कंसर्निंग द फ्यूचर एक्शन ऑफ अनदर पर्सन, I wish he would reach here soon. So I wish our hockey team would win. Again a kind of future action एक wish के तौर पे उसको दिखाया गया कि काश ये चीज़ें हो जाए, तो हम यहाँ पे would का यूज़ कर सकते हैं. To express hopeless wish, if only it would stop healing. Clear? If only she would get a windfall, मतलब एक कोई चमत्कार ही होगा, जैसे कहते हैं ना कि it would be a miracle, then ही कैन पास. तो ये उस टाइप में हम जैसे होपलेस विश है, जैसे हमें उस चीज़ की उम्मीद नहीं होती बट एक हम विश करते हैं कि ये शायद हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी वाली वो पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा. टू एक्सप्रेस डिज़ायर पोलाइटली, आई वुड लाइक टू रिसाइट अ पोएम, मतलब जब आप किसी को के सामने किसी आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, तो आप अपनी कोई भी डिज़ायर को शो करते हो, लेकिन इन अ वेरी पोलाइट वे, टू दैट एट दैट टाइम यू विल यूज़ वुड. क्लियर? Then again, to express the preference, जैसे either और वाला जो पोर्शन होते हैं यहाँ पे, would you like to have tea or coffee. Clear? So he would rather resign than submit to injustice. So these are the word. यहाँ पे preference की, जब दो चीज़ों में preference का पोर्शन आ जाए तब भी हम क्या यूज़ करेंगे, I would die rather than beg. टू एक्सप्रेस इंटेंशन एंड डिटर्मिनेशन, वो भी वहाँ पे विल वाला पोर्शन था, उसी को ही हम यहाँ पे पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे. अनरियल कंडीशन, वही अगेन जैसे वो था कि अनफुलफिल्ड विश जो आप बोल सकते हैं, तो इफ़ ही वर हियर ही वुड कम टू वंस अगैन. ओके, सो दीज आर द वे. एंड सेम जैसे उसमें पास्ट में था तो शेल का था, तो शुड वाला में पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, टू डिनोट सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेड, वी दैट वी शुड मीट देयर. तो अनएक्सपेक्टेड वाला सरप्राइज, और यहाँ पे जो पोस्ट्रोफियस और क्वेश्चन, हाउ शुड आई नो. सो टू एक्सप्रेस द फ्यूचर, टू एक्सप्रेस द लॉजिकल नेसेसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, टू एक्सप्रेस द परमिशन, टू डू नॉट सरप्राइज एंड अनएक्सपेक्टेड एलिमेंट्स, टू गिव एडवाइस और मेकिंग recommendations. So these are the way which you can use as your modals. Clear? I hope you slightly wonder